So almost all the concepts we have completed from this chapter. Now all we need is to practice some numericals. So try these questions. If you know how to solve, continue. First one, calculate number of moles of KCl and oxygen produced when 245 gram of KClO3 is heated. So first you have to write the balanced chemical equation. It's a must thing. KClO3 when heated gives KCl plus O2. Potassium chloride when heated gives potassium chloride and oxygen. Right? Balance it. अभी ये unbalanced है. Balance कर लो. K and Cl are balanced. Oxygen is to balance. So 3 by 2, then multiply by 2. So 2 KClO3 plus, sorry, gives 2 KCl plus 3 O2. Or you can write KClO3 on heating gives KCl plus 3 by 2 O2 also. So mole-mole relationship between these will be number of moles of KClO3 divided by 2 is equal to number of moles of KCl divided by 2 is same as number of moles of oxygen by 3. अभी आप देख लो क्या दिया है, किसका दिया है, क्या निकालना है. We can determine that. I've written the reactions now. Potassium chloride when heated gives potassium chloride and oxygen, right? What you have to do is you have to find the number of moles. Moles ही दिया है ना? Number of moles of KCl and oxygen produced when 245 gram of KClO3 is heated. 245 grams of KClO3 is how many moles of KClO3? Still there is an Turkish word. 245 grams of KClO3 I said. So convert into moles. The number of moles of KClO3 is 245 grams acid divided by potassium is 2 moles, correct. 122 chlorine is 35.5 plus 48, that is 245 divided by 122.5, that is 2 moles. So इसके 2 moles से आपने heat किए हैं, तो 2 by 2 is equal to number of moles of KCl by 2, number of moles of oxygen by 3. So this is 1. So KCl के 2 moles, oxygen के 3 moles. That's answer. खत्म. नहीं समझा? मैं वापस explain करूँ? नहीं से समझा. Okay. Try second then. Second is again easy. Calculate number of moles of hydrogen gas required to form 70 moles of ammonia. मुस्कान try करो. मुस्कान आ रहा है समझ में? Yes sir. Okay. Try the second one. Calculate number of moles of hydrogen gas required to form 70 moles of ammonia. Ammonia वाला reactions आपको ही मालूम है. N2 plus 3H2 gives 2NH3. ये second question के लिए reaction balance chemical equation मैं लिख देता हूँ आपको.
into plus 3H2 gives 2NH3. Right? Yeah. ये ऑलरेडी सबको पता है, द कॉमन रिएक्शन है. सो क्वेश्चन इज 70 moles of ammonia फॉर्म करने के लिए हाउ मेनी moles of hydrogen gas are required? ओरल सा क्वेश्चन है. नो 0.17. 105 moles. 105 is correct answer. See, mole relationship will be what? Number of moles of nitrogen by 1, number of moles of hydrogen by 3 is equal to number of moles of ammonia by 2. Now, you have already said how many moles of ammonia has to be formed? 70. So 70 by 2, that is 35. So how many moles of hydrogen are required? Take it 300 say 105. So answer है. बड़ा ओरल सा क्वेश्चन होता है ये सब. इसका 1, इसका 3, इसका 2. इसके 2 के लिए इसका 3 चाहिए, तो इसके 70 के लिए दैट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 35. तो इसके 70 के लिए इसका 100. सॉरी आ गया सर. ओके. सो 105 इज आंसर. अभी भी अगर किसी को डाउट है प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन. नहीं तो इजी क्वेश्चन से करते जाओ. आ गया सर. ओके. तो ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है ना? खत्म हो जाएगा. बट इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं मोल 2 के साथ. मतलब रिडॉक्स वाला पार्ट. एक्चुअली जेई में ये चैप्टर और मोल 2 मिला के एक चैप्टर बोलते हैं. कई जगह पे उसको मोल 1 मोल 2 बोल के पढ़ाते हैं. हमारे टेक्स्ट बुक में सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन नाम से अलग अलग नाम से चैप्टर है, बट एक्चुअली एक ही है. तो मोल 1 मोल 2 बोल के कई लोग पढ़ाते हैं इसको. तो आई कंटिन्यू. ये जो पार्ट है, ये जो चीज चल रही है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा रिडॉक्स के साथ. राइट. और वो जो एक्स्ट्रा क्लास में वो दूसरे चैप्टर चलते रहेंगे. ओके सर. I answer. What mass of slag lime would be required? What mass of slag lime would be required to decompose completely 4 gram of ammonium chloride? Also find mass of the product solved. Reaction मैंने अलग से दे दिया है. Sir, the mass of slaked lime required will be 5.18 gram. 5.18 gram. 4 gram है ammonium chloride. बैलेंस है का रिएक्शन? बैलेंस बैलेंस है. ठीक है, सही लगा. कैलकुलेट करता हूँ मैं भी. बाकी सबको बता दो. सॉरी, तो प्रोडक्ट फॉर्म निकालना है तो फिर हर एक प्रोडक्ट का मास निकाल के बताना है ना? हाँ सबको अप्रॉक्स बता दो. एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज नॉट नीडेड.
but it's still quite. Number of moles of calcium hydroxide by 1 should be equal to number moles of NH4Cl by 1. Balance है ना calcium? नहीं balance नहीं है, sorry. Balance है 2. Let's check its balance journal. Calcium balance. So calcium is 1, NH4Cl 2, calcium chloride 2 more, so 1 more is equal to number of moles of ammonia by number of moles of H2O by 2. अभी सब्स्टिट्यूट कर दो. ये पता है 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 4 ग्राम अपॉन this is 18 plus 35 53.5 इतने मोल्स है, राइट? अभी सबका निकाल लो आप, जिसका जिसका चाहिए. पहले किसका चाहिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स कितने आएंगे पहले वो देखें. तो 4 अपॉन 53.5 मोल्स इतने आएंगे. मास चाहिए तो मास पूछा था ना, तो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो कितने मोल्स हैं? 4 अपॉन 53.5 इनटू सॉरी अपॉन 2 सॉरी अपॉन 2 भी है ना, अपॉन 2 भी है इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया? 74. ये हो गया आंसर 2 140 54 27 2.74 ग्राम्स के आसपास आएगा. और एग्जैक्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना. सर 2.59 आ रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन. हाँ पहले तो तूने 5 पॉइंट कुछ बोला था. हाँ, तो वो तब बैलेंस इक्वेशन नहीं था ना, तो तब मैंने भी नहीं देखा. So 2.75 या 74 जो भी आएगा. 54 मैंने लिया था, 53.5 लिया था. आ रहा है ना समझ में, या वापस एक्सप्लेन करूं पूरा? ओके. सो 2 अपॉन 53.5 हो गया कैल्शियम क्लोराइड का. अगर मास चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो इनटू 111 राइट. So 18 3s are 18 6 are approximately 2 4 ग्राम का approximately 4 ग्राम के आसपास आएगा. मतलब 4 ग्राम से अलग आएगा. आप जस्ट राउंडेड इट ऑफ. इसको 54, इसको 180. 4 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा आएगा. फिर अमोनिया का then you have to calculate ammonia. So moles of ammonia needed would be 2 times 4 upon 53.5 into 2 moles की जगह mass चाहिए तो into 17. So this gets cancelled.
17 3s are 51 approximately 3.2 51 2.5 1/5 is 3.5 3.1 approximately 1.3 से approximately 1.6 1.19 1.19 पता नहीं 1.3 के आसपास आना चाहिए, उसे थोड़ा सा कम जा रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का क्या स्टेटस है? सेम है 2 into 4/53.5 and 2 मास चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 18, तो पिछली बार 18 किया था इसमें, सो नियरली 3, so 1.33 के आसपास है। ओके yes ओके Next is calculate weight of residue obtained when 55.2 gram of Ag2CO3 silver carbon is heated. Also calculate mass of gases liberated. तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए। Effect of heat on carbonates. कार्बोनेट्स को अगर आप हीट करते हैं ना, तो see silver and mercury Ag and Hg, जैसे Ag2CO3 है, इसको अगर आप हीट करोगे, Ag2CO3 अगर आप हीट करोगे तो what it gives Ag plus CO2 plus half O2। सेम स्टोरी है मर्करी का, हाँ मर्करी का भी वही है, तो मेटल देता है राइट। और अगर आपने सोडियम, मतलब अल्कली मेटल्स हैं जो सबसे ग्रुप 1 में एक्सेप्ट फॉर लिथियम, इनके अगर कार्बन आप हीट करोगे ना आप, तो कुछ नहीं देता है, नो इफेक्ट। बाकी किसी को भी अगर हीट करोगे, कोई दूसरा मेटल कार्बोनेट होगा ना, कोई भी दूसरा मेटल कार्बोनेट, तो इट विल गिव यू मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई रिपीट, ये आपको याद रखना है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स को जब भी आप हीट करते हो तो 3 केस आपको याद रखना है, सिल्वर और मर्क्यूरी, Ag और Hg, दे गिव मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अगर आप ग्रुप 1 में लिथियम को छोड़ के, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनके कार्बोनेट्स को अगर आप हीट करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल नॉट बी रिड्यूस्ड, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। एंड बाकी इसके अलावा कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा, उसको हीट करोगे आप, तो व्हाट यू गेट इज मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। देन तो ये यू हैव टू रिमेंबर। और ऐसे ही बाई कार्बोनेट का हीटिंग भी याद ही कर लो। बाई कार्बोनेट्स को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हीटिंग ऑफ बाई कार्बन, ये भी याद करके रख लो, हीटिंग ऑफ बाई कार्बन। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहोगे, मिलेगा ये वापस पढ़ने। बट अगर आप बाई कार्बोनेट्स को हीट करते हो तो व्हाट यू गेट इज कार्बोनेट मिलेगा, राइट। देन और क्या मिलेगा, कार्बोनेट्स मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O। फॉर एग्जांपल सपोज करो NaHCO3 बाई कार्बोनेट है, NaHCO3 को आपने हीट किया तो क्या बनेगा, Na2CO3 मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा,
तो 2NaHCO3 अगर आपने हीट किया तो CO2 प्लस H2 ये आएगा। तो अगर बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो क्या क्या मिलेगा? कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड H2O मिलेगा। नहीं, किसी भी बाइकार्बोनेट, कोई भी बाइकार्बोनेट आप हीट करोगे तो कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। कार्बोनेट्स के हीटिंग में 3 केसेस हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। वन इज इफ यू हीट सिल्वर और मर्क्यूरी कार्बोनेट्स, सिल्वर कार्बोनेट अगर आप हीट करोगे तो you will obtain metal, carbon dioxide and half oxide. ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को अगर आप के कार्बन्स को हीट करोगे तो देयर विल बी नो इफेक्ट, जो जैसा वैसे ही रहेगा। Na2CO3 हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा, K2CO3 हीट करोगे देयर विल बी नो इफेक्ट। एनी अदर मेटल कार्बोनेट if you heat you'll get metal oxide plus CO2. For example, MgCO3 if you heat so MgO plus CO2 you'll get. क्लियर? अभी बताओ। So 43.2 gram of metal silver is formed. 43.2 correct है, correct. आ गया सबको? And 8.8 gram of CO2 is liberated. 8.8 ये आया सबको? Ag2CO3, what is heating effect of heat on silver carbonate? Ag2CO3 will give you 2Ag plus CO2 plus half O2. इसको डबल कर लो, 2 4 2 whatever. ना मोल मोल रिलेशनशिप क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट अपॉन 2 is equal to number of moles of silver by 4 is equal to number of moles carbon dioxide by 2 is equal to number of moles. ये ऑलरेडी दे रखा 55.2, तो 55.2 डिवाइड बाय सिल्वर 100 216 and 40 60
276 is equal to number of moles of sugar of 4. ये हो गया नियरली 5 टाइम्स, तो 1/10 हो गया. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इज 4/10, 0.4. तो मास ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा? 108 4 जा 432, तो 43.2 ग्राम. तो सिल्वर आएगा 43.2 ग्राम्स. आ रहा है समझ में? ये वापस एक्सप्लेन करूं मैं? कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है. 0.2 ग्राम है. सॉरी, ऑक्सीजन 3.2 ग्राम लिबरेटेड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 8.8. okay. एक बार समझा दूंगा. Okay, see, first thing you have to know is this reaction, that is effect of heat on silver carbonate. तो जब भी आप सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हो तो इट रिड्यूसेस इन सिल्वर, आपको मेटल मिलेगा, सिल्वर मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट मतलब निकल जाएगा एंड ऑक्सीजन निकल जाएगा, राइट? सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर लिबरेटेड एंड सिल्वर इज ऑब्टेन्ड, राइट? तो ये रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा, बाकी निकल जाएगा. तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या आएगा? 2Ag2CO3 gives 4Ag plus 2CO2 plus O2. ये समझ में आया? हाँ सर. ओके. अब मोल मोल रिलेशनशिप लिख लो. उसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2CO3 डिवाइड बाय 2 is equal to number of moles of Ag by 4 is equal to number of moles of carbon dioxide by 2 is equal to number of moles of oxygen. ये मोल मोल रिलेशनशिप हो गया. ये समझ में आया? हाँ सर. अब देख लो डेटा में क्या दिया हुआ था. डेटा में Ag2CO3 दिया 55.2 ग्राम्स. तो कन्वर्ट इनटू मोल्स, तो 55.2 डिवाइड बाय Ag2CO3 सिल्वर 108 12 and 16 48 60 and 216, तो 276 हो गए. तो कितने मोल्स आपने सिल्वर कार्बोनेट लिया था? 55.2 डिवाइड बाय 276, दैट इज 1/5. 5 नीचे आ गया, 1/10 मोल्स हो गए. तो ये वैल्यू जो हो गई, दिस इज 1/10. So 1/10 is equal to number of moles of silver by 4, number of moles of carbon dioxide by 2, number of moles of oxygen. तो सिल्वर के कितने मोल्स हो गया? 4/10, 0.4 हो गए. मास पूछा था, तो मोलर एटॉमिक मास है 108, उससे मल्टीप्लाई किया तो 43.2 ग्राम्स. समझा? समझा. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 2/10, 0.2. तो मास कितना हो गया? 0.2 into 44, that is 8.8. तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 8.8 ग्राम. ऑक्सीजन का 0.1 मोल, तो 3.2 ग्राम्स. ऑक्सीजन का 3.2 ग्राम. दैट्स आंसर. नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन. समझा सर. ओके. नेक्स्ट. Calculate weight of ammonium dichromate which is required to produce 3.04 gram of green residue. फिर वही क्वेश्चन है, हिसाब पता कर लो, फटाक से आ जाएगा आंसर.
Calculate weight of ammonium dichromate which is required to produce 3.04 gram of green residue. Ammonium dichromate NH4 whole twice Cr2O7 on heating gives nitrogen, Cr2O3, chromium oxide and H2O. बैलेंस कर लो, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस है क्या? बैलेंस कर लो आंसर निकालो. See, balance करना है. It's already balanced in 4H2 है. That's remaining is balanced. 216. इतना कैसे होगा ना? ये 3.04 ग्राम है ना. ग्रीन रेसिड्यू ही है 3.04 ग्राम, राइट? तो इसके कितने मोल्स हो गए? 3.04 अपॉन क्रोमियम एस 152. 150 48 150 2. 152. इतने ही मोल्स इसके हो गए इनटू 152 प्लस यहाँ पे 128 प्लस 72. So 5 ग्राम आ रहा है. 5 ग्राम के आसपास आ रहा है. तो ये हो गया तुम्हारा 100 252 अपॉन वो 5/3. तो 5/3 तो 5.05 ग्राम के आसपास आंसर आ रहा है. अप्रोक्सीमेटली आंसर 5.05. पहले बराबर जा रही थी चिन्मयी. 504 की जगह 5.04 आना था. तुमने कहाँ चले गए चिन्मयी? सर वो लास्ट टाइम आपने क्या किया? इसका मास निकाला ना, मोलर मास. इसका मोलर मास कितना होगा? Cr2O3 का ऑलरेडी 152 आ ही गया था. इसका कितना हो गया? 18 to the 36. और इधर पे बेसिकली कुछ और तो गया नहीं है. इसको टोटल कर दिया मैंने, वही आने वाला. तो 252 टोटल हो रहा है. तो 252 अपॉन 152 मतलब 250 अपॉन 150 5/3 के आसपास हो गया. 3 अपॉन 3.04 अपॉन 3 is 1.01 into 5 कर दिया. तो 5.05 के आसपास आंसर है. हाँ सर. नेक्स्ट वापस एक्सप्लेन करना था. एक्सप्लेन अगेन. किसी को डाउट है? एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ 50,000 लीटर हार्ड वाटर which has been found to contain 1.62 gram of calcium bicarbonate per 10 liter of water, right? और ये रिएक्शन है जिससे हार्डनेस रिमूव करता है, राइट? कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिमूव करने के लिए वी मिक्स स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं. COH होल ट्वाइस और CaHCO3 होल ट्वाइस दोनों मिक्स होता है. कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर. ये रिएक्शन दे दिया मैंने. वन 1.62 ग्राम पर 10 लीटर है. तो 50,000 लीटर्स में कितना हो जाएगा? 8,100. 8,100 ग्राम्स. बस मोल वाले
कॉन्सेप्ट से कन्वर्ट कर लो, देख लो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगेगा। बैलेंस कर लेना, जरूरत तो नहीं पड़ रहा। एट 8,100 ग्राम एंड 50,000 लीटर, इतना रिमूव करना है आपको। बैलेंस कर लो करना है। तो जरूरत है नहीं, अपने को सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड divided by 2 is same as number of moles of calcium bicarbonate। इसके कितने 8,100 अपॉन HCO3 कितना हो गया 61 122 162 इनटू ये कितना हो गया 74, ये हो गया 162 into 50 100 by 2 3,700 that's answer 3,700 was answer so answer is 3,700 grams नहीं समझ में आया तो please tell me I'll explain again आ गया सर। Sir, can you please explain again? okay see question is how much calcium hydroxide is required to remove the hardness from hard water हार्डनेस अलग अलग टाइप का होता है तो यहाँ पे हार्डनेस की वजह से किसकी वजह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो CaCO3 इज हार्डनेस एंड कितना पार्ट्स है 1.62 ग्राम पर 10 लीटर एंड यू हैव टू मतलब कितना वाटर है जिसका हार्डनेस रिमूव करना 50,000 लीटर्स सो 10 लीटर में 1.62 ग्राम है हार्डनेस राइट तो 50,000 लीटर्स में कितना होगा तो 1.62 grams in 10 liter तो 1.62 into 5,000 that is 8,100 grams in Yes, sir. 50,000 Understood, liter sir. okay so this is to be removed by making it react with calcium hydroxide Yes, sir. बस फिर तो उसके Understood. okay next one current market price of aluminium, zinc and iron scrap are 20, 60 and 3 per kg. If hydrogen gas is to be prepared by reacting one of these with H2SO4, which one will be cheapest and which one will be most expensive to use? तो जैसे कोई भी मेटल है H2SO4 समझो पहले एल्यूमिनियम लेना एल्यूमिनियम जब भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है so it displaces hydrogen from there तो Al2SO4 whole thrice aluminium sulfate plus hydrogen acid बैलेंस कर लो जिंक क्या करता है जिंक रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बैलेंस कर लो आयरन को अगर रिएक्ट कराओगे आप H2SO4 से तो आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स FeSO4 प्लस हाइड्रोजन एरिया
तो कैसे मतलब हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है, राइट? हाइड्रोजन बनाने के लिए आप H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हो इनको, राइट? तो कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, कौन सा कम पड़ेगा? पहले तो बैलेंस करके देख लो आप। ये बैलेंस रिएक्शन है। तो फोर्स वाले में पर मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए कितना एक्सपेंसिव हो रहा है? एक मोल हाइड्रोजन के लिए, हाँ, एक मोल हाइड्रोजन के लिए 3/2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लगेंगे और 1 मोल हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन बनाता हूँ तो एल्यूमिनियम कितना लगेगा फर्स्ट रिएक्शन से? हाउ मच एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड? 3/2. 3/2 moles of aluminum are required. So 3/2 moles of aluminum. 1 mole of aluminum is 27 gram. And 1 ग्राम का मास कितना है? एल्यूमिनियम 20. तो पर मतलब दिस इज फॉर केजी, लेट अस अज्यूम, चलो 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, छोड़ दो, यहाँ कंपेयर ही करना, सबको करना होगा। सो दिस इज 10 810 810 upon 1000, that is 81 paisa. If I have to use zinc, तो जिंक के 1 मोल के लिए इसका 1 मोल यूज करना है, तो जिंक का कितना हो जाएगा? जिंक कितना होगा? 65 है, 65 into 16, तो कितना आ गया जिंक अगर यूज करते थे तो? So 1040. Then for if I have to use iron, तो iron का 1 ही मोल यूज होने वाला है, तो 56 तो 4 रुपए 3 रुपए का, तो 160. So for production of 1 mole of hydrogen, या समझो 1 किलो मोल कर देता हूँ तो सब अच्छा दिखाई देगा। 1 किलो मोल के लिए 810 रुपीज लग रहे हैं मुझे, 1040 रुपीज लगेंगे अगर जिंक यूज किया था मैंने, एंड आयरन यूज किया तो ओनली 168 रुपीज विल बी नीड। तो विच वन इज मोस्ट एक्सपेंसिव एंड विच वन इज चीपेस्ट? Zinc is most expensive. Zinc is most expensive and Iron to is use most. iron will be, yes, cheapest one. Next is 1.84 gram of mixture of calcium carbonate and MgCO3 magnesium carbonate is strongly heated till mass of sample becomes constant. If 0.96 grams of residue is obtained, find percentage composition of sample taken. So एक sample है which contains both of them. MgCO3 भी है उसमें and CaCO3 भी है, दोनों है, right? And it is heated. Total mass 1.84 gram is heated. कुछ तो मालूम है हमको निकल जाता है, क्या निकलता है वो आपको सोचना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, एंड कुछ बच जाता है, ये रेसिड्यू है, दिस इज 0.96 ग्राम. You have to find the परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मतलब स्टार्टिंग में कितना परसेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट था, कितना कैल्शियम कार्बोनेट था. So I'll give you a hint. See, you have to find how much percent magnesium carbonate and how much percent of calcium carbonate is there, right? So let us assume this has x gram of this and 1.84 minus x gram of this. So magnesium carbonate on heating, क्या था हमारा effect of heating on carbonates?
silver and mercury gives metal on heating. Sir, sodium, potassium, rubidium and cesium carbonates show no effect on heating, and any other carbonate on heating metal reduces oxide to plus metal oxide plus carbon dioxide. Similarly, calcium carbonate on heating gives metal oxide plus carbon dioxide. Right. अब देख लो, इसका x ग्राम लिया था, इसका 1.84 माइनस x लिया था, नहीं? इसमें ये रेसिड्यू निकाल लो आप, इसमें और इसमें कितने ग्राम रेसिड्यू आता है, इसको 0.96 से इक्वेट कर देना, you will get the value of x. Once x is known, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लो आप. ओके Okay, I'll leave this question for you to try it. We'll discuss in next class. नहीं, अभी मैं stop करता हूँ.